এখন বাজে সকাল 10:30। আমরা আমাদের জার্নি স্টার্ট করলাম রাজগীরের উদ্দেশ্যে। তো আমরা প্রথমে গিয়েছিলাম মঙ্গলা গৌরী মন্দিরে। তো সেখানে আমরা কোনো রকম ভিডিও করতে পারিনি বলে ওখানকার ছবিগুলো এখানে অ্যাড করে দিলাম। তো আমরা চলে এসেছি আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন দশরথ মানঝি রোড। তো এটা বেসিক্যালি একটা রোড যেটা দেখার জন্য বহু মানুষ আসে, কারণ এই রোডটা খুব ফেমাস। নামটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে এটা দশরথ মানঝি রোড, মানে একজন লোকের নামে এটা বানানো। এই লোকটি আসলেই ছিল একজন কৃষক। তো উনি রাস্তাটা নিজে পাহাড় কেটে বানিয়েছিলেন। দুদিকে পাহাড় রয়েছে, এই দিকে পাহাড় আবার ওদিকেও পাহাড়, কিন্তু মাঝখানটা কেটে রাস্তা যে বানানো হয়েছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে। তো ওনার ওয়াইফ ফাল্গুনী দেবী একবার পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে ভীষণভাবে ইনজিওর্ড হয়েছিলেন। তো তখন ওনাকে ডক্টরের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওই দশরথ মানঝিকে প্রায় 55 কিলোমিটার পথ পেরিয়ে যেতে হয়েছিল। সেই এক্সপিরিয়েন্সটা করার পর থেকে উনি ডিসাইড করেন যে উনি এখানে একটা রাস্তা বানাবেন, এবং শুধুমাত্র ছেনি হাতুড়ি এই সমস্ত সাহায্যে উনি এই রাস্তাটা বানিয়েছিলেন। তো এই কারণে এই রাস্তাটা ভীষণ ফেমাস, এবং যে রাস্তাটা 55 কিলোমিটার পেরিয়ে যেতে হতো সেটা মাত্র 15 কিলোমিটারের দূরত্বে করে দিয়েছে। এই যে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি চারিদিকটাই প্রায় পাহাড় রয়েছে, মাঝখানটায় শুধু রাস্তা। তো এই কাজটার জন্য উনি পরে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। তো হওয়ার মতনই একটি কাজ, কারণ সম্পূর্ণ একার চেষ্টায় একটা পাহাড় কেটে রাস্তা বানানো খুবই কষ্টের কাজ। এখান থেকে খুব সুন্দর একটা ভিউ পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে। অপূর্ব মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি, তাই এই সিনটা অন্তত ভিডিও না করে তো পারলামই না। তো আমরা প্রবেশ করছি নালন্দাতে। এখানে একটা খুব সুন্দর নালন্দার গেট রয়েছে, দেখাই যাচ্ছে। তো চলো দেখা যাক। তো আমরা এখন প্রবেশ করছি নালন্দাতে। এখানে 5টা ঘোরার জায়গা রয়েছে, কী কী ঘোরার জায়গা রয়েছে সেগুলো তো আমরা যেখানে যেখানে যাবো সেগুলো অবশ্যই করবো, কিন্তু যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট এসে সেখান থেকে কিন্তু টোটোতে যেতে হবে আপনাদের, এবং প্রত্যেকটা টোটোর ভাড়া 400 টাকা করে। তো আমরা যেহেতু 6 জন ছিলাম, আমাদের টোটো নিতে হয়েছে। এখন টোটো করে আমরা ভেতরে ঢুকছি, কোন কোন স্পটে ঘুরবো সেগুলো অবশ্যই দেখাবো। তাহলে চলো। তো আমরা এসে গেছি এখন হিউয়েন সাং মেমোরিয়াল হলে। তো
হিউয়েন সাং এখানে এসে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ছাত্র হিসেবে নালন্দায় ছিলেনও এবং পরে এখানে শিক্ষকতাও করেছেন। তো আমরা চলে এলাম নালন্দারই সেকেন্ড স্পটে। তো আমি বলেছিলাম যে 5টা স্পট ঘুরবো, তার মধ্যে এটা 2 নম্বর। এটা একটা জৈন টেম্পল। তো চলো একটু দেখে নিই চারদিক দিয়ে ঘুরে। তো আমরা মন্দির দর্শন করে বেরিয়ে পড়লাম। মন্দিরের ভিতরে যেহেতু ক্যামেরা করা অ্যালাউ ছিল না, আমি খেয়াল করিনি ফার্স্টে। তো যাই হোক, ভেতরে আমরা কোনো রকম ক্যামেরা করতে পারিনি। তো এটা একটা আরেকটা মন্দিরে আমরা প্রবেশ করছি এখন। তো আমরা চলে এলাম নালন্দার থার্ড স্পট, অর্থাৎ সবচেয়ে প্রাচীন বুদ্ধ মূর্তি দর্শনে। হিউয়েন-সাংয়ের পুঁথি পড়ে জানা গিয়েছে যে এখানে যে বুদ্ধ মূর্তিটি রয়েছে সেটাই নাকি সবথেকে প্রাচীন বুদ্ধ মূর্তি। তবে এর সত্যতা সম্পর্কে আমরা সত্যিই জানি না, কারণ এটা আমরা এখানে এসে শুনলাম। ये नालंदा का मेन मूर्ति
ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে যে প্রাচীরটি রয়েছে, ওটা হচ্ছে নালন্দার একদম এন্ড পার্ট, যেটা এখান থেকে দেখা যায়। আমরা এবারে প্রবেশ করছি আমাদের 4 নম্বর স্পট অর্থাৎ নালন্দা মিউজিয়ামে। তো নালন্দা মিউজিয়ামের ঠিক অপোজিটেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। তো আমরা মিউজিয়ামটা আগে দেখব, দেখে তারপরে ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ করব। মিউজিয়াম ঢোকার রাস্তাটা সুন্দর, দেবদারু গাছের ছাইতে ঠান্ডা শীতল পরিবেশ। সামনে দেখুন ময়দানে কাজ করছে, ময়দানটাকে সুসজ্জিত করছে। খুব সম্ভবত শীতকালীন ফুলের বাগান হবে। এই শুরু হয়ে গেছে কাজ, মেশিন দিয়ে ঘাস কাটছে। দেখুন কত লোক একসাথে কাজ করছে, দেখার মতো সারিবদ্ধভাবে কাজ করছে। আর যে পথ দিয়ে আমরা হাঁটছি, এরকম শান্তির পথ আমি খুব কম দেখেছি। মনে হচ্ছে যেন আমরা কোনো শেডের তলা দিয়ে হাঁটছি, আসলে গাছের শেড। খুব সুন্দর, মাঝখান দিয়ে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে, সুন্দর পরিবেশ। এখানে শীতরাঙের কোনো ছায়া পড়েনি, শীতরাঙ এখান থেকে পালিয়ে গেছে। যাই হোক, এই পরবর্তীটা আমাদের আরেকজন গাইড। তো আমরা প্রবেশ করে গেলাম মিউজিয়ামে। চলুন, যদি ভেতরে ভিডিও অ্যালাউড থাকে তো আমি মিউজিয়ামের ভেতরটা অবশ্যই দেখিয়ে দেব। তো তার আগে চারপাশে গ্রাউন্ডটা একটু দেখে নিন, অপূর্ব সুন্দর। কেমন লাগছে? খুবই ভালো লাগছে। তো এবার আমরা জলদি জলদি ঢুকে পড়ি, কারণ আমাদের এবার নয়তো ইউনিভার্সিটির গেটটা বন্ধ হয়ে যাবে। চলুন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়েছি। এই হলো তার টিকিট কাউন্টার, প্রচণ্ড ভিড়। তো এবার আমরা আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকবো। दुनिया की पहली विश्वविद्यालय है जहाँ इंसान सब जगह सर आप बुकिंग काउंटर चले जाइए। আমরা এখন ঢুকবো নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে, কিন্তু আমরা এখন বাইরে থেকে ফার্স্টে গাইড নেব, কারণ গাইড ছাড়া ভেতরটা কিছুই বোঝা যাবে না। তো সেই রকমই কথা চলছে। তো এখানে কিন্তু গাইডরা 700 টাকা চেয়েছিল, তো আমরা একে 400 টাকায় রাজি করালাম। তো চলো দেখা যাক। सैलरी नहीं मिलता, जो आप हमें टिप्स देते हैं हमारी सैलरी है। ये लैंग्वेज सब समझ रहे हैं ना? ये नालंदा विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमार गुप्त ने किया था। तो इस विश्वविद्यालय के संस्थापक राजा कुमार गुप्त थे। ये 5वीं शताब्दी की बिल्डिंग है सर। लेकिन अब प्रश्न होता है कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय यहाँ बना क्यों था? इसलिए कि पहले आम का बागीचा था, यहाँ बुद्धा भगवान आए थे। बुद्धा भगवान ने 2 शिष्य बनाया था, मोगलाना एंड सारिपुत्रा। तो एक पहले स्तूप बना भगवान बुद्ध की यादगारी में, जो अंदर से सॉलिड कंस्ट्रक्शन है, इसके ऊपर बुद्ध की मूर्ति थी। ये बनने के बाद ये नालंदा विश्वविद्यालय बना था, जिसे राजा कुमार गुप्त ने बनाया। हर्षवर्धन देवपाल राजा ने विस्तार किया। ये 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी, 1,500 प्रोफेसर पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। लेकिन 1200 ईस्वी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का यहाँ पे अटैक हुआ और नालंदा को जला दिया गया था। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय यहाँ थी सर, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजिका। इतनी किताबें उनमें थी, जब जलाई गई आपका नालंदा 6 महीना तक लगातार जलता। फिर धीरे धीरे करके भूकंप आया और ये मिट्टी से उस तरह से कवर्ड हो गया था, एक पहाड़ के जैसा। अभी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को खोद खोद करके निकाला गया है। बाकी एरिया पर गांव बसा हुआ है, खुदाई बंद है।
हम जो जानकारी आपको दे रहा है, कहाँ क्या है बताने जा रहा है, ये हमारी अपनी कल्पना नहीं है सर। ये सारी बातें ह्वेन सॉन्ग चीनी यात्री की डायरी से मालूम पड़ता है, जो यहाँ का छात्र बाद में टीचर रहा था। उन्होंने जो डायरी लिखा आज भी वो चाइना में है, जिस डायरी का नाम है सी यूची। उन्होंने डायरी में वर्णन किया था नालंदा के बारे में। नालंदा दो शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल जो ज्ञान का प्रतीक है, दा माने देने वाला, ज्ञान देने वाला जगह नालंदा है। एक ही पर किलोमीटर की खुदाई हुई है सर। नालंदा में 4 बड़े बड़े गेट थे, जबकि 10 किलोमीटर में जहां द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे, यदि छात्र सही जवाब देते थे तो एडमिशन होता था। जरा विचार कीजिए, जहां का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, प्रोफेसर प्रिंसिपल कितने विद्वान होगा। लेकिन अभी तक नालंदा का ओरिजिनल गेट नहीं मिला है। वो छोटा सा रास्ता दीवार काट करके सर बनाया गया है, जिससे हम इंटर करेंगे, घूम के उसी से वापस। তো আমরা এখন মূল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে প্রবেশ করব এবং ভিতরে যা দেখব সরাসরি গাইডের মুখ থেকে উনি যা ব্যাখ্যা দেবেন সেটাই আমি এখানে অ্যাড করে দেব। 2016 को यूनेस्को के लिस्ट में भी शामिल हो गया है। नाउ इट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में इसका नंबर 1043 है। इंडिया का ये 33 है। बिहार का ये दूसरा पोजीशन है सर। पहला महाबोधि मंदिर बोधगया का नाम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है। ये 15 जुलाई 2016। बाबू इकडे बा। 1 2 3 मिला। ये रास्ता दीवार काट करके बना, अतः ये आरसीसी सीमेंट बाद में दिया। जहाँ कहीं सीमेंट दिया वहाँ डेट लिखा ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1961। सर ये छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं कमरे, एक कमरे में एक लोग रहते थे। वो दरवाजा होता था और हम छत के पास में खड़े हैं। यानी यह एक बौद्ध विहार है, एक हॉस्टल है। एक हॉस्टल में 100 लोग रहते थे। जब ये बिल्डिंग बाई नेचर टूट गया, दूसरा राजा इसको बंद करके इसके ऊपर दूसरा या तीसरा फ्लोर का निर्माण किया। ये बहुमंजिली इमारत है। तो ये सब रहने का कमरा है और आंगन पढ़ने का जगह होता था। गुरुकुल। दीवार की मोटाई कम से कम 4 फीट से 12 फीट तक चौड़ा था सर, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। মধ্যে যেতে হবে। जा रहे हैं। इसे बिहार कहा जाता था। रहने पढ़ने खाने पीने की जगह। हर हॉस्टल के एंट्रेंस पे इधर भी और इधर भी दोनों तरफ में सर भगवान बुद्ध का मूर्ति। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे, नमस्कार थे। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धम शरणं गच्छामि धम्मम शरणं गच्छामि। इसमें ये सब कटिंग जो किया गया, अभी किया गया बरसात की पानी निकलने के लिए। एक काला काला दाग जलने वाला ओरिजिनल दाग छिल गया। टेम्परेचर इतना हाई था चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द की दाल।
तो आप एक हॉस्टल के अंदर आ गए हैं। हर एक हॉस्टल में 100 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, जिसके लिए 2 कॉमन बाथरूम होता था। दिस वाज यूज फॉर टेक बाथ, टॉयलेट एंड ओपन एरिया। ये दोनों स्नान घर हैं। यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते हैं। অনেক বড় লম্বা আছে। সব পুড়ে গেছে, কালো কালো দাগ দেয়। টয়লেট আর দেখিস পিছনে नहीं तो यह एक कमरा एक लोग को दिखाई देता। एक एक कमरे में एक एक लोग रहते थे। इंडिविजुअल एक एक कमरा था सबका। छात्र और शिक्षक के बीच 7:1 का रेशियो था। 7 स्टूडेंट और एक टीचर थे। कमरा लेकिन एक ही जैसा था। हर 7 कमरे के बाद एक टीचर रहते थे। दिस वाज शेल्फ, ये किताब रखने की जगह है। दैट वाज द लाइट शेल्फ, वो दीपक रखने का जगह है। दरवाजे पर वहाँ से दीपक लाकर के लोग यहाँ पढ़ते थे। गैस करने के जमाने को लाइट को दरवाजे पर रखा जाता था। लाइट के रूप में वे लोग कैस्ट्रोल ऑयल, अरंडी का तेल, रेड़ी का तेल जलाते थे, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। छत सब लकड़ी का था, जल गया। ये काला काला दाग जलने वाला दाग है सर, जो 6 महीना तक नहीं जलता रहा। महीना तक चलता है, सब জ্বলে গেছে। কয় মাস ধরে জ্বলেছে। কেউ কমবে না। তো আপনাদের হাফসিতে কত ভেবে চিনতে বানিয়েছে বলো তো? ये सब भी क्या है, दिया या फिर बुद्ध भगवान ओ अच्छा, बुद्ध भगवान का। सिस्टर लोग भूल गए। नहीं, हम लोग जो घूम रहे हैं, एक ब्लॉक को घूम रहे हैं। ऐसा 108 ब्लॉक था। हर 2 ब्लॉक के बीच का वो पार्टीशन है। ব্লক ছিল বুঝলে, ना ना ওই ব্লকের পার্টিশন চলছে। गाइस तो भैया यहाँ पर लोग अंदर जाकर के मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे, साधना करते थे। ये गुफा हर कमरे में नहीं था। हर हॉस्टल में किसी एक कमरे में एक गुफा थी, जहाँ वो रोटेशन वाइज 1 बाय 1 आकर के मेडिटेशन करते थे। ये ऊंचा इतना है, लंबा वहाँ तक है, जिसमें एक बार में एक व्यक्ति अंदर बैठ करके ध्यान करते थे। So this is हाँ, this is for complete concentration. কনসেন্ট্রেশন। ये कितना बड़ा था और एक बोलिए। এই আর একটা ব্লকের পরিচয়। ব্লক করা ছিল। আর এটা ব্লকের এই ব্লক বি ব্লক। ও আচ্ছা আচ্ছা। জানলে কি করে, তুমি তো বলো। यहाँ पे भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति थी। मूर्ति टूट गया है। मूर्ति का ये चरण चिन्ह बचा हुआ है बुद्ध भगवान की मूर्ति का। ये हमारा अपना थिंकिंग है, बहुत इनर्जेटिक है। वहाँ पे मेडिटेशन करने के पहले और बाद आकर के लोग पूजा करते थे। ये पूजा करने का जगह है। পাতা তুলেছিস? খবরটা ঢোকো। কিছু ছিল হ্যাঁ করো। So sir, every courtyard was the classroom. हर हॉस्टल का आंगन ही इनका क्लासरूम था। ओ ये लेक्चरल स्टैंड है, यहाँ से टीचर इन्हें पढ़ाते थे। ये पत्थर की जगह पिलर था, जिससे इनकी छतें टिकती थी। तो एक एक हॉस्टल एक 100 लोगों के लिए मात्र था, तो 100 लोगों का ही क्लासरूम है। ऐसा 108 हॉस्टल था। हम लोग 108 जो एक रिलीजियस नंबर माला वगैरह लगाते हैं, इनका भी बेसिक कंसेप्ट वही था। बगल में एक चूल्हा है। अभी भी देहातों में बड़ा बड़ा फंक्शन होता है, ऐसा ही लंबा लंबा चूल्हा बनता है। नीचे से काठ की लकड़ी जब उसके अंदर डाली जाती थी, इसका उपयोग विभिन्न काम में होता था। जब क्लास चलता था, लोग वहाँ प्रैक्टिकल का काम करते थे। माने अष्टधातु की मूर्तियों को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम लोग खाना बनाते थे।
जाड़े के मौसम में हाथ भी सेकते थे और बाकी समय में सर आयुर्वेदिक दवाई लेते थे। इस तरह से रहना, पढ़ना, खाना पीना सब छात्रावास के अंदर। जरा सा मोबाइल का टॉर्च जला दीजिए, कोई एक मोबाइल का टॉर्च 2 मिनट के लिए। यहाँ देखिए कितना अच्छा टेक्नोलॉजी आपके पास 1500 साल पहले था। ये 2 स्टोर रूम है, गोदाम जहाँ वो चावल रखते थे। उसके छत की बनावट आप देख रहे हैं कमानीदार है। ठीक उसके सामने सर अभी भी जहाँ कुछ हम लोग मेन सामान रखते हैं, अपने इष्टदेव की मूर्ति लगाते हैं, यहाँ भगवान बुद्ध का विशाल मूर्ति था। इसे लाइटेड करने के लिए 2 पत्थर लगा हुआ है जो देखने के लिए साधारण लग रहा है। अनजाने में लोग इस पर पैर रख करके आ और जा भी रहे हैं, किंतु यू सी इट इज ब्लेजिंग नाउ सर, इट इज स्पार्किंग नाउ। देखिए अभी भी कितना ये स्पार्क कर रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये साधारण पत्थर नहीं है सर, रियली दिस इज माइक स्टोन। ये अब्रक का पत्थर है, माइक है। उस जमाने में यहाँ पे एक कॉपर प्लेट लगाया जाता था सर। जब इस पे सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी तो लाइट सीधा मूर्ति पे रिफ्लेक्ट, इट्स जस्ट लाइक मिरर सिस्टम। अब रियली देखा जाए तो बिना गाइड का ऐसे ईटा का भट्ठा जैसा रह गया है। आप आए थे उसके पहले ये सब जगह पे नहीं लाया था सर, क्योंकि इसकी खुदाई बाद में हुई है। ऑफ कर दिया, बताने के बाद खुद लेगा, रेट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती सर। ये जगह जगह पर आंगन काटा है और दिखाया है, ये 3 बार में बना है। सो वी आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ नालंदा। हम फ्लोर पर खड़े हैं। ये बड़ी बड़ी ईंटें गुप्ता डायनेस्टी की है, जबकि ये कंक्रीट चुनसुर की माटी की दीवार हर्ष डायनेस्टी की है, और ये छोटी ईंटें जो लगी है वो पाल डायनेस्टी की है। तो जाइए, इच्छा है तो कुआं और गोदाम का छत देख करके आइए। छत अभी भी बचा है, कुआं में पानी सूख गया है। তো আমরা এখন প্রবেশ করছি সেই গুদাম ঘরের ভেতরে। এই হলো সেই গুদাম ঘর। পুরোনো দিনের ছাদটা এখনো রয়েছে। এইখানটা দেখেছো কিরকম ইট কোনা বার করে 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 আর্ট করেছে। এই হলো সেই বিখ্যাত কুয়ো যেখান থেকে জল এনে তারা স্নান করতে যেত, সেইটা। মিশে ফেলেছে বাবা, কত নিচু, শুকিয়ে গেছে তো নাকি? হ্যাঁ, ওই কুয়ো দিয়ে কি জল তুল? वो पाली और संस्कृत ये 2 भाषा था, लेकिन विषय के रूप में कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सब मुख्य सब्जेक्ट था। नालंदा विश्वविद्यालय की कुल आयु 700 साल रही। तो 700 साल में यहाँ जो बड़े बड़े स्कॉलर हुए 17 बड़े बड़े स्कॉलर हुए, जो टाइम टू टाइम नालंदा के हेड हुए थे, वाइस चांसलर हुए थे, जिनका नाम रहा नरोपा, तिलोपा, मरपा, गुरु पद्मशंभवा, शांति देवा, शांति रक्षिता, शीलभद्र, अतीश दीपंकर, ये सब बड़े बड़े। আমি জানি অতীশ দীপঙ্কর আর শিলভদ্র। एक ही पॉइंट। तो नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़ा बड़ा लाइब्रेरी था, जिस लाइब्रेरी का नाम था रत्न सागर, रत्न दधी, रत्नगंज का। वो 9 मंजिला था। ये किसी एक 9 मंजिली बिल्डिंग लाइब्रेरी पर जाता था। ये बड़ा लंबा सीढ़ी पूरा जल गया।
यहाँ नीचे की सीढ़ी को काट करके 3 राजा का निशानी दिखाया, 3 बार में ये बना। वहाँ धनुष के जैसा चिन्ह है, वो कुमारगुप्त राजा का निशानी, वो धनुष का चिन्ह जिसमें बड़ा बड़ा ईंट लगाया। एक कंक्रीट चुन सुर्खी माटी का दीवार हर्षवर्धन राजा का निशानी, ऊपर वाला छोटा छोटा ईंट राजा देवपाल का निशानी। ये भी एक छात्रावास था जिसका आंगन क्लास था, ये क्लासरूम का এটা পুকুর ছিল না না ছাত্রাবাস ये ছিল। भी इसका छात्रावास। ছাত্রাবাস ছিল কিন্তু এটা সব ধ্বংস হয়ে গেছে। আর ওইটা खुदाई 2 लाइन में हुआ, एक लाइन सब एक जैसा हॉस्टल है, ये लाइन इसी तरह का 11 मंदिर है, वो सब के भी मिट्टी हटाया जाए तो ऐसा मिलेगा। ये नालंदा का मेन स्तूपा है सर, इसका नाम है सारीपुत्र स्तूपा। सारीपुत्र जो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, जिनका जन्म भी और निर्वाण किया गया। तो सारीपुत्र के मर जाने के बाद इस स्तूप को राजा अशोक ने पहले गोल बनाया, फिर जब जब यूनिवर्सिटी बनी ये सीढ़ियों के द्वारा इसको ऊपर किया। ये अंदर से सॉलिड है, इसके ऊपर बुद्ध की मूर्ति थी जो टूट गई। आसपास में चौकोर वाला ध्यान करने का जगह है। ये जो गोल गोल देखते हैं सर, असंख्या में गोल वाला मिला जो समाधि है। जो विद्यार्थी प्रोफेसर यहाँ मर जाते थे उनकी याद में यहीं पर उनकी समाधि बनती थी। अब ये डैमेज हो गया है, इसलिए ऊपर जाना मना हो गया। अब यहाँ के बाद वक्त है तो लोग फ्री होकर के फोटोग्राफ वगैरह लेते हैं सर। वो आपका टॉयलेट है पीला बिल्डिंग, और बगल में ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था है। बाहर निकलना लेकिन उसी गलियारे से होगा। यही नालंदा है। यहाँ के बाद हमारा गाइड ওই তোরা তো সমাধি जी, गोल वाला समाधि है सिस्टर, चौकोर वाला ध्यान करने का। उधर एक ही जैसा 11 हॉस्टल है, इधर 11 मंदिर है। ওদিকটা মন্দির, हाँ, और दिखे ওদিকে যেতে দেবে না আমাদের? बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। তো আমি তো প্রায় পুরো ব্যাখ্যাটাই এখানে দিয়ে দিলাম। তো এবারে আমাদের বেরিয়ে যাওয়ারও সময় হয়েছে। আশেপাশটা আরেকটুখানি ঘুরে আমরা বেরিয়ে যাব, কারণ এর গেটটা 5:30টায় বন্ধ হয়ে যাবে। তো এখানেই আমরা শেষ করছি আমাদের রাজগীর গয়া ট্রিপের সেকেন্ড পার্ট। থার্ড পার্ট খুব শীঘ্রই আসছে, আর তার জন্য আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে হবে। এই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবে, শেয়ার করবে, আর কমেন্ট করে জানাবে কেমন লাগলো। কিছু ফটো রইল, দেখতে থাকো শেষ অবধি। থ্যাংক ইউ।